Hello students, welcome all of you. In this video, we will deduce Newton's formula x1 f2 equals to f1 f2 for a coaxial combination of two thin lenses in geometrical optics for BSc Part 2 physics courses in lecture number 8. To derive Newton's formula x1 x2 equals to f1 f2 for a coaxial combination of two thin lenses, suppose x dash be the principal axis of a coaxial lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. Let h1 h2 be the principal points and f1 capital F1 and capital F2 the focal points of the lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. हमने सपोज किया कि x डैश लेंस कॉम्बिनेशन का और कोएक्सियल लेंस सिस्टम का प्रिंसिपल एक्सिस है, जबकि h1 एंड h2 टू प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, जबकि कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2 टू फोकल पॉइंट्स हैं. F1 is the first focal point of the system and F2 is the second focal point of the system. System means lens system, that is combination of coaxial combination of two thin lenses. Two thin lenses का यहाँ two thin lenses का coaxial combination है. two thin lenses जो कांटेक्ट में है वह एक कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थीन लेंसेस फॉर्म करते हैं, दैट इज एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. उस सिस्टम का कैपिटल F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट है, जबकि F2 सेकेंड फोकल पॉइंट है, जबकि H1 उस सिस्टम का दैट इज कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थीन लेंसेस का H1 कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थीन लेंसेस का फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, जबकि कैपिटल H2 उस लेंस कॉम्बिनेशन का, उस सिस्टम का और लेंस सिस्टम का सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट है. सपोज a small object O dash is kept perpendicular or at right angle to the principal axis x dash. सपोज किया जाता है कि एक छोटा ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है O डैश, जिसे लेंस सिस्टम का प्रिंसिपल एक्सिस x डैश के परपेंडिकुलर रखा जाता है, राइट एंगल पर रखा जाता है. An incident light ray from the object from point O dash of the object O dash travels parallel to the principal axis. An incident light ray O dash A1 travels parallel to the principal axis x dash, meets the first principal plane at point A1. This is the first principal plane denoted by vertical dotted line passing through the first principal point H1, while the vertical plane passing through the second principal point H2 is the second principal plane of the lens system. So an incident ray
coming from point O dash of the object O dash, which is kept perpendicular to the principal axis. This incident light ray from point O dash of the object moves or travels parallel to the principal axis xx dash and meet the first principal plane at point A1. It emerges through a point A2 in the second principal plane. तो O डैश ऑब्जेक्ट का पॉइंट O डैश से प्रोड्यूस होने वाला इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस लेंस सिस्टम का प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश के पैरेलल मूव करता है, ट्रेवल करता है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट A1 पर इंसिडेंट होता है. यह लाइट रे सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन का पॉइंट A2 पर इमर्ज करता है लेंस सिस्टम से पास करने के बाद एंड सेकेंड फोकल पॉइंट F2 से होकर सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट F2 से होकर पास करता है. अनदर लाइट रे फ्रॉम point O dash of the object O dash passes through point F1, that is first focal point of the lens system, and meets at point B1 of the first principal plane. It emerges through point B2 in the second principal plane and becomes parallel to the principal axis after emerging out of the lens system, and the two emergent light ray from the lens system, first light ray which moves parallel to the principal axis meets at point A1 at the first principal plane and then emerges through point A2 of the second principal plane and then passes through second focal point of the system F2 and then move further, आगे भी मूव करता है to meet the another light ray which becomes another light ray coming from the same point O dash of the object passing through first focal point of the lens system F1 and meets at point B1 of the first principal plane and emerge through another point B2 in the second principal plane and then becomes parallel to the principal axis xx dash and thus both light rays coming from point O dash of the object O dash meet at point I dash. So I dash is the image of point O dash. Point I dash, which is the image of point O dash of the object, lies on the other side of the lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. Thus, I dash is the complete image which is inverted image of the object O dash which is placed perpendicular to the principal axis on the
left side of the lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. इस प्रकार ऑब्जेक्ट O डैश, जिसे प्रिंसिपल लेंस कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट O डैश से प्रोड्यूस होने वाले टू लाइट रेज, एक O डैश A1 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, जबकि अनदर लाइट रे जो फर्स्ट फोकल पॉइंट लेंस सिस्टम का F1 से होकर पास करता है एंड देन फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट B डैश पर इंसिडेंट करता है, फॉल करता है, जबकि फर्स्ट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे O डैश A1 जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, वह फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 से पास करने वाला वर्टिकल प्लेन फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, तो इसके फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट A1 पर मीट करता है फर्स्ट लाइट रे, फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे O डैश A1, जबकि सेकेंड लाइट रे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट B1 पर इंसिडेंट होता है एंड दोनों लाइट रेज A1 पॉइंट पर इंसिडेंट करने वाला फर्स्ट लाइट रे, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन का पॉइंट A1 पर इंसिडेंट करने वाला फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे एंड सेकेंड लाइट रे जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट B1 पर इंसिडेंट करता है, तो वह दोनों लाइट रेज इमर्ज करते हैं लेंस कॉम्बिनेशन से होकर बाहर निकलते हैं एंड फर्स्ट लाइट रे पॉइंट A2 पर सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट A2 पर इमर्ज करता है, जबकि सेकेंड लाइट रे सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट B2 पर इमर्ज करता है एंड आफ्टर इमर्जिंग आउट ऑफ द लेंस सिस्टम, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियल थिन लेंसेस, सेकेंड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश के पैरेलल होकर ट्रेवल करता है लेंस सिस्टम के अदर साइड में, जबकि फर्स्ट लाइट रे सेकेंड फोकल पॉइंट F2 से होकर के पास करता है एंड दस इस प्रकार दोनों लाइट रेज आइडस पॉइंट पर मीट करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस सिस्टम के दूसरे साइड में आइडस पॉइंट पर ओडेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट के ओडेस पॉइंट से प्रोड्यूस आने वाले लाइट रेज लेंस सिस्टम के अदर साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आइडस पॉइंट पर मीट करते हैं। इस प्रकार लेंस सिस्टम से रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जेक्ट का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट O डैश का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आई डैश फॉर्म होता है लेंस कॉम्बिनेशन के अदर साइड में। दिस इज द वर्किंग। Let O dash, that is object height, is y1 and II dash image height is y2. Write down. Let O dash object height is y1 and y image height II dash equals to y2. Also suppose F1O is x1, that is distance of the object from the first focal point or first focus of the system of the lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. The x1 is the distance of the object from the first focal point f1, while f2i is the distance of the image from the second focal point of the lens system. So let f1o equals to x1 and f2i equals to x2. h1 f1 is equal to a small f1 and
H2 F2 is a small f2, where a small f1 and a small f2 are the focal lengths of the lens system. क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस है, तो बोथ लेंसेस का फोकल लेंथ f1, a small f1 and a small f2 है. Suppose the focal length of the combination of two thin lenses are f1 and f2. So f1 and f2 are the focal lengths of the lens system. That is two lenses of the lens system. First lens का focal length f1 है, second lens का focal length f2 है. So h1 f1 is a small f1 and h2 f2 is a small f2. Newton's formula, we have to derive Newton's formula, that is x1 x2 equals to f1 f2 for a lens combination or a coaxial combination of two thin lenses. According to the new sign convention, distances y1 x2 both are taken as positive, while f2 focal length f2 means focal length of the second thin lens f2 is also taken as positive, while y1 is also taken, y1 is the object height is also taken as positive, while image height I dash, which is we have assumed it as y2, it is negative according to the sign convention, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इमेज डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो है, तो ऑल वर्टिकल डिस्टेंस वी मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, all vertical distance which are measured below the principal axis are taken as negative. तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस I डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यह वर्टिकल डिस्टेंस है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो यह नेगेटिव होगा, y2 नेगेटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हाइट है O डैश वह प्रिंसिपल एक्सिस के, यह वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, तो यह पॉजिटिव होगा, तो y1 पॉजिटिव होगा जबकि y2 नेगेटिव होगा. x2 पॉजिटिव होगा, x2 का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस सिस्टम, f2 से i का डिस्टेंस हमने सपोज किया है x2, एंड लेंस सिस्टम का फर्स्ट फोकल पॉइंट f1 से ऑब्जेक्ट O डैश का डिस्टेंस कितना है, x1 है, तो x1 निगेटिव होगा क्योंकि x1 जो है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के लेफ्ट साइड में है, दैट इज इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है, देयरफॉर x1 इज नेगेटिव, व्हाइल x2 डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस है सेकेंड फोकल पॉइंट लेंस सिस्टम का f2 से, f2 के राइट में डिस्टेंस है यह, तो यह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, क्योंकि f2i जो है वह सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट h2 के राइट साइड में है, दैट इज इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है, तो साइन कन्वेंशन से y1 पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट हाइट, जबकि इमेज हाइट y2 नेगेटिव होगा, x1 नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस सिस्टम, f1 से फर्स्ट फोकल पॉइंट लेंस सिस्टम का f1 है, और वहां से उस फोकस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f1 हो x1 वह नेगेटिव होगा. स्मॉल f1 फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट h1 से फर्स्ट फोकल पॉइंट f1 का डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस, वह भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, f1 नेगेटिव होगा क्योंकि h1 के लेफ्ट साइड में है, जबकि f2 distance of the second focal point of the lens system or the second lens from the second principal point h2, distance of the second focal point of the lens combination of two lenses from the second principal point h2, it is also taken as h2 f2 is equal to a small f2 and it is also taken as positive, while f2 distance of the image that is point I of the image I dash from
second focal point of the lens system, it is also taken as f2 is also taken as positive according to the sign convention. तो इस प्रकार डिस्टेंस y1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y1, x2 एंड f2, ये थ्री डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, जबकि y2, x1, y2 इमेज हाइट x1 एंड f1, ये सभी ये थ्री डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे. Now in two similar triangles H1 B1 F1 and O dash F1, H1 B1 upon O dash equals to H1 F1 upon F1 O. So write down. अब आप लोग नोट करें. In two similar triangles H1 B1 F1, capital H1 B1 F1 and triangle O1 F1. In two similar triangles H1 B1 F1, H1 B1 F1 and O dash F1, O dash F1. Since both are similar triangles, in the left side of the combination of two thin lenses or the lens system, we have H1 B1 upon O dash. बोथ ट्रायंगल्स का वर्टिकल साइड का रेशियो उनके हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा. तो H1 ट्रायंगल H1 B1 F1 का वर्टिकल साइड H1 B1 है, जबकि सेकेंड ट्रायंगल O डैश F1 का वर्टिकल साइड O डैश है. H1 B1 अपॉन O डैश इज इक्वल टू बोथ ट्रायंगल्स के वर्टिकल साइड का रेशियो ले लिया गया, और यह दोनों ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल्स के हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो, हॉरिजॉन्टल साइड्स H1 F1 एंड F1 O के रेशियो के इक्वल होगा. सो वी हैव इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स H1 B1 F1 and O dash F1, we have H1 B1 upon O dash equals to H1 F1, या हॉरिजॉन्टल साइड H1 F1 होगा ट्रायंगल H1 B1 F1 का, एंड अदर ट्रायंगल O dash F1 का हॉरिजॉन्टल साइड O F1 है. तो बोथ ट्रायंगल्स का हॉरिजॉन्टल साइड का रेशियो वर्टिकल साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा. सो H1 F1 अपॉन F1 O. H1 F1 is equal to H1 F1, that is distance of the first focal point of the lens system from the first principal point H1, that is this distance is equal to a small f1, which is or it is the focal length of the first lens of the combination of two thin lenses, or two of the lens system of that is focal length H1 F1 is equal to a small f1, and it is the focal length of the first lens of the lens combination, that is coaxial combination of two thin lenses. तो चूंकि टू थिन लेंसेस का कोएक्सियल कॉम्बिनेशन है, तो उसके फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ F1 हो गया, जो कि लेंस सिस्टम का फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 से फर्स्ट फोकल पॉइंट का डिस्टेंस F1, H1 F1 इक्वल टू स्मॉल f1, एंड साइन न्यू साइन कन्वेंशन से यह जो डिस्टेंस है H1 F1 वह फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 के लेफ्ट साइड में है, दैट इज लाइट का जो मूवमेंट है
इंसिडेंट लाइट का, टू इंसिडेंट लाइट रेज है फ्रॉम कमिंग फ्रॉम ओ डैश, पॉइंट ओ डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट यह डायरेक्शन है, तो वह डायरेक्शन जो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन all distances taken along the direction of incident light are taken as positive, while those in the opposite direction to the incident light, direction of incident light, movement of or travel of incident light are taken as negative. Therefore h1 upon जो distance है is equal to a small f1, that is focal length of the first lens of the lens system, and यह डिस्टेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। तो बोथ डिस्टेंसेस h1 f1 and f1 o, f1 o is taken as x1, we have taken it as x1. x1 is the distance of the object o dash from the first focal point f1 of the lens combination or lens system. So both distances f1 and x1, that is h1 f1 and f1 o are negative according to the sign convention. So h1 b1, h1 and h1 b1 is also negative. h1 b1 is the vertical distance, vertical downward distance, and h1 b1 is equal to the image height y2. क्योंकि यह जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, उस लाइन पर h1 and h2 फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट्स लाई करते हैं, एंड जो इमर्जेंट इंसिडेंट लाइट है लेंस सिस्टम से इमर्ज करने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो b1 i डैश क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए डिस्टेंस h1 b1 वह इक्वल हो जाएगा इमेज हाइट i डैश के। सो h1 b1 भी इक्वल हो जाएगा y2 के, एंड साइन कन्वेंशन से दोनों h1 b1 एंड i डैश प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, वर्टिकल डिस्टेंस है, बोथ आर वर्टिकल डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. So according to the sign convention, both are taken as negative. So h1 b1 in place of h1 b1 we can write h1 b1 in place of h1 b1 we can write minus y2 using the new sign convention upon o dash है, डिनोमिनेटर में o dash है, तो o dash क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड एज इज टेकन एज पॉजिटिव. सो o dash जो डिस्टेंस है, जिसे जो ऑब्जेक्ट हाइट है, जिसे हमने y1 सपोज किया है, यह पॉजिटिव हो जाएगा. सो h1 b1 तो नेगेटिव होगा, तो y2 की जगह माइनस y2, जबकि o dash जो है इमेज हाइट सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, इसलिए पॉजिटिव होगा. सो इट इज y1 प्लस y1, प्लस नहीं भी लिखेंगे, y1 भी लिखेंगे तो प्लस ही समझा जाएगा. अब h1 f1 यह है किसके इक्वल है, h1 f1 f1 स्मॉल f1 के. तो यह डिस्टेंस भी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के मूवमेंट के अपोजिट. सो इट इज f1 इज आल्सो नेगेटिव, स्मॉल f1 इज आल्सो नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन. अपॉन h1 f1 माइनस f1 हो गया, एंड f1 अपॉन f1 o है, तो f1 o इज इट इज दिस डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव. f1 o इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट o dash फ्रॉम द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस सिस्टम. This distance is taken as x1. This distance is also negative, so it is minus x1. RHS में माइनस माइनस न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया. Therefore, we have the relation minus y2 upon y1 is equal to f1 upon x1. So we have minus y2 upon y1 equals to f1 upon x1. Suppose it is equation number 1. Now, in two other similar triangles on the other side, that is right side of the lens system, and both similar triangles are I dash f2 and h2 a2 f2. That is a pair of two similar triangles, and in the two similar triangles we know that the ratio of vertical sides is equal to ratio of their horizontal sides. जैसा कि हमने फर्स्ट पेयर
लेंस सिस्टम के लेफ्ट साइड में फर्स्ट पेयर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स H1 B1 F1 एंड O डैश F1 में हमने यूज किया था सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो नाउ वी हैव इन टू अदर सिमिलर ट्रायंगल्स on the other side of the or on the right side of the lens system, that is I dash F2, and in two similar triangles I dash F2 and H2 F2 H2 A2 F2. So now in two other similar triangles I dash F2 and H2 A2 F2 we have बोथ सिमिलर ट्रायंगल्स का वर्टिकल साइड का रेशियो ले लिया जाए पहले। तो I डैश ट्रायंगल I डैश F2 का वर्टिकल साइड I डैश जो कि इमेज हाइट है, एंड अदर ट्रायंगल जो I डैश F2 के सिमिलर है वह है H2 A2 F2। तो इसका वर्टिकल साइड प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश के ऊपर है H2 A2। सो I डैश अपॉन H2 F2 बोथ ट्रायंगल्स का वर्टिकल साइड का रेशियो वी कैन राइट I डैश अपॉन H2 A2 इक्वल्स टू बोथ ट्रायंगल्स के हॉरिजॉन्टल साइड का वर्टिकल साइड का रेशियो हमने ले लिया, और इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के बोथ सिमिलर ट्रायंगल्स के वर्टिकल साइड का रेशियो उनके हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो का इक्वल होगा। तो ट्रायंगल I डैश F2 का हॉरिजॉन्टल साइड कौन हो जाएगा I F2 और F2I, एंड सेकेंड ट्रायंगल H2 A2 F2 का हॉरिजॉन्टल साइड कौन हो जाएगा H2 F2। सो वी हैव I डैश अपॉन H2 A2 बोथ ट्रायंगल्स के वर्टिकल साइड का रेशियो उनके हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो के सेम टू ट्रायंगल्स के हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल साइड हो गया कितना F2I ट्रायंगल I डैश F2 का F2I अपॉन अदर ट्रायंगल H2 A2 F2 का हॉरिजॉन्टल साइड H2 F2, इट इज H2 F2। अब I डैश को हमने जो इमेज हाइट है उसको हमने सपोज किया है कितना, उसे सपोज किया है हमने y2, लेकिन y2 जो वर्टिकल डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो साइन कन्वेंशन से y2 होगा निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट नाउ I in place of I dash it is minus y2 or minus y2 upon H2 A2 is equal to O dash, that is ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल हो जाएगा A2 H2, क्योंकि A dash O dash A2 जो कि फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे का ट्रेवल का मूवमेंट का डायरेक्शन है। फर्स्ट लाइट रे O डैश ऑब्जेक्ट O डैश के O डैश पॉइंट से प्रोड्यूस होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे का मूवमेंट है, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट A1 पर इंसिडेंट होता है एंड इमर्ज करता है सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन के पॉइंट A2 पर। तो O dash A2 is parallel to the principal axis XS dash, so vertical distance A2 H2 is equal to H2 A2 is equal to O dash, so H2 A2 भी किसके इक्वल हो जाएगा y1 के इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल हो जाएगा। so it is minus y2, now I dash is minus y2 and H2 A2 is equal to plus y1, so minus y2 upon plus y1 equals to F2I is the F2I is we have taken it as H2, it is the distance of the image I dash or
point I of the image, I dash, from the second focal point of the lens system. So this distance is x2 and it is right to the second principal point h2. So this distance is positive. This distance should be taken as positive according to the new sign convention. While h2 f2 is a small f2, that is focal length of the second lens of the lens system, that is combination of two thin lenses. Combination of two thin lenses के second lens का focal length है स्मॉल f2, जो कि लेंस सिस्टम का सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट h2 से सेकेंड फोकल पॉइंट f2 का डिस्टेंस है. तो यह डिस्टेंस h2 f2 भी सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट h2 के राइट साइड में है, मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के लॉन्ग ही, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के मूवमेंट के लॉन्ग ही है. इसलिए यह डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंसेस h2 f2 इज इक्वल टू स्मॉल f2 एंड f2i इज इक्वल टू x2, both are positive. So we have f2i in RHS. We have I dash upon h2a2 equals to f2i upon h2 f2 in two similar triangles, I dash f2 and h2a2 f2. And in RHS we have written in place of I dash minus y2 upon, in place of h2a2 is plus y1 equals to f2i. This distance is x2 which is positive, that is plus x2, plus नहीं भी लिखेंगे तो प्लस ही अंदर समझा जाएगा, and h2 f2 is f2, it is also positive. Suppose it is equation number 2. So we have minus y2 by y1 equals to plus y1, प्लस हटा भी दे तो नहीं भी प्लस लिखेंगे तो उसका मतलब प्लस ही है जब तक माइनस इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए. Therefore we get minus y2 upon y1 equals to x2 upon f2 from two similar triangles, I dash f2 and h2a2 f2 in the other side, that is right side of the lens system, that is coaxial combination of two thin lenses. Now comparing equations 1 and 2, both equations 1 and 2 का LHS इक्वल है minus y2 by y1. फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है, सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस भी माइनस y2 अपॉन y1 ही है. तो इन दोनों बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 के का एलएचएस इक्वल है, तो उसके दोनों बोथ इक्वेशंस के आरएचएस भी इक्वल हैं. सो राइट डाउन कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट बोथ इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए, क्योंकि एलएचएस तो इक्वल है. So we have f1 upon x1, first equation का RHS equals to second equation का RHS x2 upon f2, and from this relation we can obtain easily the relation after cross multiplication x1 x2 equals to f1 f2, and it is the Newton's formula for a coaxial combination of two thin lenses, or for the combination of for a lens combination. यही न्यूटन फॉर्मूला है. So after cross multiplication we have f1 f2 upon is equal to x1 x2, that is, or we can write x1 x2 equals to f1 f2, and suppose it is equation number 3, and this equation is the Newton's formula for a coaxial combination of two thin lenses, or Newton's formula for a lens combination. x1 x2 equals to f1 f2. So we have deduced Newton's formula for a coaxial combination of two thin lenses, which is x1 x2 equals to f1 f2. Write down, this is the Newton's formula. This is the Newton's formula for a coaxial combination of two thin lenses. For a coaxial combination of two thin lenses,
इसमें स्पेशल केस डिस्कस किया जा सकता है कि इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस सिस्टम इज द सेम, लेंस सिस्टम के दोनों साइड्स का रेशियो, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का रेशियो, राइट साइड का मतलब लेंस सिस्टम के बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का मीडियम अगर सेम है तो उस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं F2 इक्वल टू माइनस F1, क्योंकि F2 पॉजिटिव होगा, F2 जो डिस्टेंस है H2 से F2 मतलब सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट से सेकेंड फोकल पॉइंट का, तो H2 सेकेंड प्रिंसिपल माने F2 जो पॉइंट है वह सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट H2 के राइट साइड में है, तो यह तो चूंकि अभी हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर किया था यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, जबकि F1 पॉइंट फर्स्ट लेंस सिस्टम का फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 के लेफ्ट में है, तो वह डिस्टेंस H1 F1 इक्वल्स टू स्मॉल f1 वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर लेंस सिस्टम के बोथ साइड्स का मीडियम अगर सेम है तो सिचुएशन में हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, F2 इक्वल टू माइनस F1 एंड दोनों बोथ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बोथ फोकल लेंथ विल बी इक्वल F2 इक्वल टू माइनस F1 इक्वल टू F से। तो उस इक्वेशन में इक्वेशन 3 जो न्यूटन फॉर्मूला है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x1 x2 इक्वल्स टू F1 F2 दोनों की जगह क्या लिखेंगे, F ही लिखेंगे, और F2 इक्वल टू माइनस F1, सो दोनों एंड इच इक्वल टू F, सो माइनस F इंटू F दैट इज माइनस F स्क्वायर। सो इट इज द स्पेशल केस, राइट डाउन if medium on both sides, if the medium on both sides of the lens system is same, then we can write F2 equals to minus F1 and let each equal to a small f. Then we have F2 equals to minus F1, क्योंकि सेकेंड फोकल लेंथ F2 पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एंड F1 निगेटिव होगा, सो F2 इक्वल टू F1। अगर लेंस सिस्टम के दोनों साइड्स में जो मीडियम है वह सेम है तो उस सिचुएशन में F2 इक्वल टू F1 इक्वल्स टू हम F कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन से F2 पॉजिटिव है F1 निगेटिव है, सो F2 इक्वल टू माइनस F1 इज इक्वल टू F से। मीडियम सेम है लेंस सिस्टम के दोनों साइड में, तो F1 F2 दोनों बोथ फोकल लेंथ लेंस सिस्टम के और थिन लेंसेस के बोथ फोकल लेंथ F1 एंड F2 इक्वल होंगे, देयरफॉर F2 इक्वल टू माइनस F1 इक्वल टू F से। सो इक्वेशन 3 becomes F1 F2 दोनों की जगह F लिख देंगे एंड नेगेटिव होगा क्योंकि F2 इक्वल टू माइनस F1 है, F2 की जगह माइनस F1 पुट कर दिया जाए एंड उसके बाद F1 भी F के इक्वल है एंड F2 भी F के इक्वल है, तो माइनस स्मॉल f इंटू F दैट इज F स्क्वायर। सो इक्वेशन 3 becomes x1 x2 इक्वल्स टू माइनस F1 एंड F2 की जगह माइनस F1 एंड F1 और F2 दोनों F के बराबर है, सो F1 इक्वल टू माइनस F इंटू माइनस F इंटू F दैट इज माइनस F स्क्वायर। Suppose it is equation number 4. This is a special case of the Newton's formula for a lens combination. If the medium on both sides of the lens system is same, then Newton's formula can be written as x1 x2 equals to minus a small f square. So say it is equation number 4. So general Newton's formula for a lens combination or a coaxial combination of two thin lenses is x1 x2 equals to f1 f2, where x1 and x2 are the distances of the object from the first focal point of the lens system f1 and distance of the image from the second focal point f2 of the lens system. तो x1 डिस्टेंस हो गया लेंस सिस्टम का कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस का है
फर्स्ट फोकल पॉइंट का F1 का F1 से ऑब्जेक्ट O डैश का डिस्टेंस x1 एंड x2 हो गया लेंस कॉम्बिनेशन के सेकेंड फोकल पॉइंट F2 से इमेज I डैश का डिस्टेंस, वह डिस्टेंस हमने सपोज किया x2 एंड F1 F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ the lens system, that is a focal length of the two thin lenses of the lens system. So x1 x2 equals to f1 f2 and it is given by equation number 3 and it is the Newton's formula for a lens combination and if the medium on both sides of the lens system is same, then f2 equals to minus f1 and suppose f1 and f2 each equal to a small f. Therefore, Newton's formula x1 x2 equals to f1 f2 becomes x1 x2 equals to minus a small f square. Say it is equation number 4. So, we have deduced Newton's formula which is x1 x2 equals to f1 f2 or a coaxial combination of two thin lenses or a lens combination. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.